Good morning, dear students. First, let's do Brahmanad for concentration. Sabdhan Siddha. Om. Om. Santi, Santi, Santi. Swastha. So, my dear friends, all of you again heartily welcome to your BSM class. In our previous class, we discussed about the trade, or we can say the branches of commerce. The branches of commerce are of how many types? That are of two types. That may be trade, or the second one is aids to trade. So out of that, about trade we discussed in our previous class. So what is trade? I hope all of you go through that video and settle all your doubts. I hope all of you settle your doubts. So what is trade? Trade is the process of taking goods from the place of the producer to the place of the consumer. That means the goods are produced by the producer and the goods are consumed by the consumer. So both of them belongs to two different places. For example, the producer may belongs to the Mumbai and the consumers belongs to whole over the country. जैसे कि हम लोग यहाँ पे बरहमपुर में. So the consumer belongs to the Berhampur. So here there is a difference, or there is a gap between the producer place and the consumer's place. So in order to remove the gap, as the producer is not able to meet all the customers directly, so that's why there is a need of middlemen, or there is a need the process to be carried out with the help of some activities. So these activities are referred to trade. Okay. So how many types of trades are there? The trades are of three types. That may be internal trade, that may be external trade, and the last one is your wholesale or retail trade. Out of that, what is internal trade? Internal trade refers to the trade which is carried out within the country. इंडिया के अंदर में जितने भी सारे बिजनेस हो रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेड, इंटरनल ट्रेड. External, what is external trade? The trade activities which are carried out between two or more countries, that is called external trade. Okay. For example, we are doing business with a businessman who is in China. So here we belongs to India and that businessman belongs to China. So here that type of trade is called your external trade. Okay. So the internal trade again divided into how many types? It divided into three types. That may be local trade, that may be provincial trade, or we can say state trade, and the last one is your interstate trade. So local trade means the trade which are carried out within a locality. एक particular locality में जितने भी business हो रहे हैं, that comes under your local trade. So in local trade, which type of goods are dealt? The local trader dealt with the goods of perishable nature. Perishable means the goods which are destroyed in near future, which will be destroyed in the near future. Example, butter, milk, vegetable, egg. So these are coming under your perishable goods. In interstate trade, or you can say the second one, state trade, the trade activities which are carried out within the state. एक particular state के अंदर में जितने भी business होंगे उसको हम लोग state trade बोलेंगे. Then the last one, interstate. Interstate means here in this case the trade activities are carried out between the states. जैसे कि मतलब ओडिशा, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार, इनके अंदर में जितने भी बिजनेस हो रहे हैं वो सब क्या होगा? इंटरस्टेट बिजनेस और इंटरस्टेट ट्रेड. उसी तरह एक्सटर्नल ट्रेड अगेन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप्स? द एक्सटर्नल ट्रेड अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. दैट मे बी इंपोर्ट ट्रेड. Second one is export trade. What is import trade? Import refers to where the businessmen purchase goods from the outside countries, that is called import trade. When we sold goods to the outside countries, that is called export trade. Then the last one is your wholesale trade or retail trade. So who is a wholesaler? Wholesaler is a person who buys the goods from the producer.
in large quantity and sold them to the retailers in small quantity. ये वाला जो चेन है ये तो सबको मालूम ही होगा. पहले कौन है? The first one is producer, then wholesaler, then retailer, then customer. दिस इज द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. पहले प्रोड्यूसर गुड्स प्रोड्यूस करेगा, उसके बाद होलसेलर को जाएगा, होलसेलर रिटेलर को जाएगा, रिटेलर से हम लोग जो कस्टमर है वो लोग खरीदते हैं. ठीक है. सो हियर द होलसेलर who buys the goods in large quantity from the producer and sells them to the small quantity to the retailers, and the retailer is the person who buys the large quantity of goods from the wholesaler and sold in small quantity to the customer. Okay, so retailer is the link between dash and dash. Retailer is the link between wholesaler and customer. So this is all about your previous topic. In this particular class we are going to discuss the second one. What is the second one? Second one is your aids to trade. Okay. Aids or auxiliaries of trade. Aids, or we can say the auxiliaries of trade. So here what is auxiliaries? Auxiliaries or we can say the aids जो है उसका मतलब क्या होता है? Aids मतलब और auxiliaries मतलब services. The services which are required for doing the trade activities. ट्रेड एक्टिविटीज़ करने के लिए, बिजनेस को करने के लिए what are the services which are required for promoting the business activity. For example, if we are wanting to do a business, if we want to do a business, then in that case first we must have some proper services facility. What are the various services? For example, if I want to do a business at Berhampur, so here the services like transportation facility should be required, like banking facility should be required, like insurance facility should be required, proper warehousing facility is required for doing the business. So here we are going to discuss what are the services which are required for promoting the trade. ट्रेड तो हो गया. ट्रेड के बाद क्या आता है? एड्स टू ट्रेड. ट्रेड होने के लिए क्या क्या सर्विसेज चाहिए, वो सारे सर्विसेज कहाँ पे आएंगे? एड्स टू ट्रेड में आएंगे. ट्रेड तो हो गया, मतलब प्रोड्यूसर गुड्स लेके दे दिया और वो इंटरनल एक्सटर्नल होलसेल रिटेल सब में ट्रेड हो गया. वो जो गुड्स ट्रांसफ़र करने के लिए, गुड्स फ्लो करने के लिए जो जो सर्विसेज चाहिए वो सारे सर्विसेज कहाँ पे आएंगे? दैट कम्स अंडर योर एड्स टू ट्रेड. ट्रेड होने के लिए क्या क्या सर्विसेज चाहिए. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल लेट अस डिस्कस दैट. द फर्स्ट वन इज योर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. So here in this point two words are given. The first one is your transport. So what is transportation? Why transportation is required for promoting the business? Business के लिए transportation क्यों चाहिए? अगर transportation नहीं होगा तो क्या problems होगा? Suppose मान लो जो producer है, producer कहाँ का है? मुंबई का है या फिर दिल्ली का है या फिर बेंगलोर का है. बेंगलोर का एक प्रोड्यूसर है लेकिन उसका गुड्स हम लोग बरहमपुर में यूज़ कर रहे हैं. तो कैसे मतलब गुड्स बेचा जा रहा है मार्केट में, कैसे बेंगलोर से गुड्स बरहमपुर में आ रहा है? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी. आज देयर इज अ proper facility of transport is available, so that's why the goods are freely flow from one place to another place. The producer producing the goods at a particular place, but these are consumed through all over the country. So that's why there is a need of proper transportation facility. If there is proper transportation facility, the goods can be available at each corner of the world. ठीक है. So that's why there is a need of transportation. Or we can say the goods are moved from the place where there is a less demand to the place where there is a high demand of the product. So the goods are moved from the place of the less demand to the place of high demand. तो फॉर एग्जांपल अभी अगर आज हम लोग आज के मार्केट के बारे में अगर बात करेंगे, सपोज मान लो आज के मार्केट में जो ओनियन का प्राइस है, वो ओनियन का प्राइस कितना रुपए है मालूम नहीं है, तो मार्केट जाके मालूम करके आओ. ठीक है, मैं वेट करता हूँ यहाँ पे.
सपोज मान लो ओनियन का प्राइस है 60 रुपये 60, तो ओनियन का जो प्राइस है आज के रेट में 60 रुपीज़ है 60, ठीक है। जो 60 रुपीज़ उसका 1 किलो का प्राइस है, ये कहाँ पे है? बरहमपुर मार्केट में उसका प्राइस है 60 रुपये। लेकिन ओनियन जो जगह पे प्रोड्यूस हो रहा है, सपोज मान लो महाराष्ट्र में प्रोड्यूस हो रहा है, जो महाराष्ट्र में ओनियन प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पे उसका प्राइस कितना होगा? 60 रुपये होगा या उससे थोड़ा कम होगा? ज़्यादा तो नहीं होगा क्योंकि गुड्स वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसीलिए क्या होगा? गुड्स का प्राइस कम रहेगा। तो वहाँ पे कितना होगा? आइदर 20 रुपये, 20, 30, 40 उसी के अराउंड रहेगा प्राइस, ठीक है। सो अगर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं होता तो वो जो गुड्स वहाँ पे अवेलेबल है, महाराष्ट्र में जो गुड्स अवेलेबल है, वो गुड्स का प्राइस कितना रुपये हो जाता वहाँ पे? सपोज मान लो, अच्छा ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल के तहत समझते हैं। सपोज 2 प्लेसेस है, एक है, पहला प्लेस का नाम है ए, दूसरा प्लेस का नाम है बी, ठीक है। जो ये ए वाला प्लेस है वहाँ पे 100 आदमी रहते हैं, 100 पर्सन्स रहते हैं, और वहाँ पे क्या होता है? 100 किलो का, 100 केजी का राइस, जो राइस चावल होता है वो प्रोड्यूस होता है। कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? ए जो प्लेस है, ए प्लेस में 100 पर्सन्स रहते हैं, वहाँ पे 100 केजी का राइस प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन वहाँ पे जो नीड है, वहाँ पे कितना चाहिए? 100 किलो क्या होता है? प्रोड्यूस होता है, लेकिन वहाँ पे चाहिए कितना? 50, नॉट एग्जैक्टली 50, लेट्स टेक 40 केजी। तो उन लोगों को चाहिए कितना? उनको नीड है, उनका रिक्वायरमेंट है 40 केजी। तो जो प्लेस ए में 100 किलो प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन वहाँ पे 40 केजी का रिक्वायरमेंट है। और जो प्लेस बी है वहाँ पे भी 100 पर्सन्स रहते हैं, ये वाला प्लेस में भी 100 पर्सन्स रहते हैं, लेकिन उसका जो वो लोग क्या करते हैं? वो लोग 10 केजी प्रोड्यूस करते हैं। उनका जो प्रोडक्शन है वो 10 किलो का है, वो लोग प्रोडक्शन जो करते हैं 10 केजी करते हैं, लेकिन उनका जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट कितने का है? 40 केजी। उनका जो रिक्वायरमेंट है 40 किलो का, लेकिन उनके पास कितना है? 10 केजी है, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर पहले हम लोग ए के बारे में बात करेंगे, ए में क्या होगा? उनके पास 100 पर्सन्स है, उनका रिक्वायरमेंट है 40 केजी, लेकिन उनके पास अवेलेबल है 100 केजी। तो वहाँ पे क्या हो गया? ज़्यादा गुड्स हो गया। ज़्यादा गुड्स अगर हो गया, उसके हिसाब से प्राइस में क्या होगा? प्राइस बढ़ेगा या प्राइस घटेगा? सोचो, आपको चाहिए 2 किलो, लेकिन आपके पास है 10 किलो, तो क्या होगा? प्राइस लोग क्या करेंगे? फ्री में लेने के लिए बोलेंगे, ठीक है। तो उस टाइम में क्या होगा? प्राइस जो है वो प्राइस डिक्रीज हो जाएगा, प्राइस घट जाएगा प्रोडक्ट का। तो ये जगह पे अगर हम लोग बेचेंगे, जो चावल का 1 किलो का मतलब प्राइस होता है 50 रुपीज़। सपोज 1 केजी का प्राइस जो है वो 50 रुपीज़ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है? क्योंकि ऑलरेडी गुड्स प्रोड्यूसिंग मोर ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया, दैट्स वाई द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बिकम्स लेस। जो 50 है वो शायद 10 रुपये में भी मिल सकता है लोगों को, क्योंकि प्राइस जो है वो घटेगा, ठीक है। लेकिन जो बी प्लेस है, यहाँ पे कितने लोग हैं? 100 पर्सन्स है, 10 किलो है उनके पास, लेकिन उनके रिक्वायरमेंट कितना है? 40 केजी है। तो यहाँ पे जो ये 10 किलो का प्राइस क्या होगा? 10 किलो का प्राइस बढ़ जाएगा, क्योंकि उनका जो गुड्स है वो गुड्स का डिमांड ज़्यादा है, लेकिन उसका प्राइस उसके हिसाब से, डिमांड के हिसाब से बढ़ता जाएगा। अभी जैसे कि बरहमपुर मार्केट में ओनियन का प्राइस 60 रुपये हो गया, मतलब 10 दिन पहले कितना था? 30 रुपये था, 40 रुपये था, अभी क्या हो गया? 60 हो गया, कल शायद 80 हो जाएगा। तो क्यों होगा? अगर डिमांड जितना है उसके हिसाब से सप्लाई नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली प्राइस क्या होगा? बढ़ जाएगा। जितना डिमांड है उतना सप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो ए जो जगह है, इसमें से क्या होगा? अभी राइस ट्रांसफ़र होगा कहाँ पे? बी में। कितना राइस? सपोज मान लो यहाँ पे 60 केजी ज़्यादा है, इनके पास कितना राइस ज़्यादा है? 60 किलो ज़्यादा राइस है। तो ये लोग क्या करेंगे? यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे 30 केजी, क्योंकि इनका जो रिक्वायरमेंट है कितने का है? 40 किलो का रिक्वायरमेंट है, ऑलरेडी उनके पास 10 है, बाकी कितना चाहिए? 30 चाहिए, तो 30 किलो ये लोग यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। ये जो ट्रांसफ़र होगा, ये तो मतलब ऐसे डायग्राम में तो नहीं चला जाएगा ना, ऐसे बोल के। कहाँ से जाएगा? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। अगर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है तो प्रोडक्ट एक जगह से दूसरे जगह को ईजिली मूव कर सकता है, फ्लो कर सकता है।
अगर प्रोडक्ट, इफ द प्रोडक्ट इज फ्लोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, देन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट। प्राइस क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। अगर मतलब फ्लो नहीं हो पाता, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता, देन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट में बिकम्स इंक्रीजेस। ठीक है, सो ट्रांसपोर्टेशन हेल्प्स टू मूव द प्रोडक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और फ्रॉम द प्लेस ऑफ लेस डिमांड टू द प्लेस ऑफ हाई डिमांड। I hope all of you are able to understand this example. Are you getting my point? I hope. And there are two words are given. The first one is your transport, then the second one is communication. So why communication is required? Now we discuss about the transportation part, then the second part is communication. So what is communication and why communication is required? What is communication? Communication is the process of interacting between persons. अभी यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं आपके साथ कैसे बात कर रहा हूँ? विद द हेल्प ऑफ द लैंग्वेज, दैट मे बी इंग्लिश, दैट मे बी हिंदी। तेलुगु तमिल तो नहीं आता है, इसलिए क्या कर रहा हूँ? हिंदी या फिर इंग्लिश, उड़िया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कम्युनिकेशन में? कम्युनिकेशन बिजनेस में भी चाहिए या नहीं चाहिए? सोचो, अभी सोचो हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, हमारा ट्रेड एक्टिविटीज़ चल रहा है, तो ट्रेड में भी कम्युनिकेशन चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए, ऑब्वियसली चाहिए, क्योंकि हम लोग बरहमपुर में बिजनेस कर रहे हैं और जो प्रोड्यूसर है वो कहाँ का है? महाराष्ट्र का है या फिर आसाम का है या फिर मतलब और कहीं प्लेस से, कलकत्ता से है, वेस्ट बंगाल से। ठीक है, सो देयर इज अ नीड टू बी कम्युनिकेट बिटवीन पर्सन्स। The persons refers to the wholesaler, the persons refers to the retailers and producers. प्रोड्यूसर को बात करना पड़ेगा किसके साथ? होलसेलर के साथ। होलसेलर को बात करना पड़ेगा प्रोड्यूसर के साथ, रिटेलर के साथ। रिटेलर को भी बात करना पड़ेगा प्रोड्यूसर के साथ, होलसेलर के साथ। सो दैट्स व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ communication process. Without communication process, no trade activities can be carried out. So how these communication process are carried out? Communication process are carried out with the help of how? With the help of internet, with the help of post office, with the help of telephone communication system. ठीक है, टेलीफोन के वजह से हम लोग बात कर पा रहे हैं, इंटरनेट के बदले में हम लोग मेल फेल भेज के भी बातचीत कर रहे हैं, या फिर पोस्ट ऑफिस के द्वारा भी बातचीत हो रहा है। कम्युनिकेशन प्रोसेस कैरिड आउट हो रहा है। उसी तरह ट्रांसपोर्ट प्रोसेस कैसे हो रहा है? ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, रास्ते में जो गुड्स गाड़ी जा रहा है, एयर ट्रांसपोर्ट, फ्लाइट जो जा रहा है एयर ट्रांसपोर्ट, या फिर रेल ट्रांसपोर्ट भी हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट पॉइंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। व्हाट इज द सेकंड पॉइंट? Banking and finance. The second point is here, or the second type of service, that is banking and finance. So in this point we are going to discuss what are the services which are required in case of finance. जैसे कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के बारे में बात की है, in this point we are going to discuss about the finance. As we all know, finance is the lifeblood of the business. What do you mean by lifeblood? लाइफ ब्लड मीन्स जैसे कि हम लोगों को बचने के लिए, जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए हमारे शरीर में? ब्लड चाहिए। विदाउट ब्लड नो पर्सन कैन लाइव। उसी तरह ही बिजनेस को चलने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए क्या चाहिए? बिजनेस ऑल्सो नीड फाइनेंस. So that's why here it is called finance is the lifeblood of every business. That may be small business, that may be large business. But here the point says from where we are getting the finance, how we get the finance. So finance is getting with the help of banking. बैंकिंग फैसिलिटी अगर अवेलेबल है तभी हम लोग क्या कर पाएंगे? फाइनेंस को इजीली अवेल कर पाएंगे. ठीक है. सो आज वी ऑल नो बैंक ऑल्सो प्रोवाइड लोन फैसिलिटी टू द बिजनेसमैन. बैंक ऑल्सो प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी टू द बिजनेस. बैंक ऑल्सो प्रोवाइड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी टू द बिजनेस एंड ऑल्सो समटाइम्स डिमांड ड्राफ्ट इज ऑल्सो गिवन बाय द बैंक टू देयर कस्टमर्स. सो बिजनेस को बड़ा करना है, बिजनेस को बढ़ाना है, उसके लिए क्या चाहिए? बैंक फैसिलिटी चाहिए. बैंकिंग है तो तभी जाके हम लोग बिजनेस को इजीली कर पाएंगे. इवन इन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन, इन दिस करंट टाइम,
इन ऑर्डर टू डू द इंटरनेशनल ट्रेड ऑल्सो, जो हम लोग इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड के बारे में बात किए, एक्सटर्नल ट्रेड, वो करने के लिए भी क्या चाहिए, वी ऑल्सो रिक्वायर द हेल्प ऑफ बैंक। बैंक है तभी हम लोग एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर पा रहे हैं इजीली, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट योर बैंकिंग फैसिलिटी। देन द थर्ड वन इज योर वेयर हाउसिंग। सो व्हाट इज जनरली वेयर हाउसिंग? वेयर हाउसिंग का मतलब क्या होता है? वेयर हाउसिंग में मतलब गोडाउन। जो गोडाउन होता है, बिजनेस में गोडाउन चाहिए या नहीं चाहिए? लेट अस थिंक, business without warehousing, business without godown, how do you think, is it possible? No. Every businessman have to maintain a proper godown facility, or we can say the warehousing facility. So why we require a warehousing facility? Why this service is required for doing the trade activities? Because the goods are produced on a particular time, but these are consumed throughout the year. एग्जाम्पल क्या हो सकता है? गुड्स जो होता है एक पर्टिकुलर टाइम में उसका प्रोडक्शन होता है, बट उसका जो कंजम्पशन होता है वो कहाँ पे होता है? थ्रू आउट द ईयर होता है। फॉर एग्जाम्पल जितने भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, राइस, व्हीट, पल्सेस, दीज आर प्रोड्यूस्ड एट ए पर्टिकुलर टाइम, और दीज आर प्रोड्यूस्ड सीजनली, बट दीज आर कंज्यूम्ड थ्रू आउट द ईयर। होल ओवर द ईयर वी आर यूजिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स। सो now you think whether we require proper warehousing facility or not? Yes, we require proper warehousing facility in order to protect the goods. Okay, we need, in order to protect the goods, we require proper warehousing facilities. So with the help of warehousing we can keep the product until its requirement. उसका जब तक requirement नहीं होता तब तक उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रोटेक्ट करके सेफली हम लोग गोडाउन में रख सकते हैं, ठीक है। सो दैट कम्स अंडर योर वेयर हाउसिंग पॉइंट। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज एडवर्टाइजिंग। So in advertising point, here advertising is also a service that also comes under your ads to trade. Why? Because the consumers may not be aware about the product which are available in the market. With the help of, क्योंकि मतलब ऐसा तो मालूम इम्पॉसिबल है कि प्रोड्यूसर जो गुड्स को प्रोड्यूस कर देगा ऑटोमेटिकली कंज्यूमर उसको जान लगा कि हाँ वहाँ पे MI कंपनी का, वहाँ पे एप्पल कंपनी का, वहाँ पे रॉयल एनफील्ड का एक मतलब नया प्रोडक्ट लॉन्च हो गया है। ऐसे मतलब घर में बैठ के थोड़ी जान पाएंगे, नहीं ना। तो उसके लिए प्रोड्यूसर को क्या करना पड़ेगा? द प्रोड्यूसर हैज़ टू गिव प्रॉपर एडवर्टाइजिंग फैसिलिटी। अगर प्रोड्यूसर उसका वो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट मार्केट में नया लॉन्च हो रहा है, उसका अगर एडवर्टाइजमेंट करेगा तभी जाके कंज्यूमर्स जान पाएंगे कि मार्केट में नया प्रोडक्ट आ गया है, ठीक है। So in order to avoid that, or in order to aware the consumers about the product which is newly available in the market, the producer have to involve in advertising process. Without advertising no product can sell in the market. अगर हम लोग उसका एडवर्टाइजिंग नहीं करेंगे, अगर हम लोग उसको हाईलाइट नहीं करेंगे, तब तो कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में सेल नहीं हो पाएगा, ठीक है। पहले तो हमको कस्टमर को मतलब बताना पड़ेगा कि मार्केट में क्या आया है, उसके हिसाब से दे आर रिएक्टिंग ओवर द प्रोडक्ट। ओके, सो दैट इज इन योर एडवर्टाइजिंग प्रोसेस। एंड द नेक्स्ट वन इज योर लास्ट वन, इंश्योरेंस। So the word insurance came from risk. As we all know, business is a completely full of risk. In every business there is an element of risk, and in order to avoid the risk, what is required? We require insurance facility, ठीक है। Suppose रिस्क जो होता है वो कैसे आ सकता है? मान लो अभी हम लोग बैठे हैं, हमारा एक गोडाउन है, वो गोडाउन में आग लग गया। ड्यू टू फायर देयर इज अ चांस ऑफ रिस्क। सपोज मान लो हम लोग मुंबई से गुड्स को या फिर दिल्ली से गुड्स को ऑर्डर किए हैं, तो दिल्ली से बरहमपुर आने के बीच में रास्ते में एक्सीडेंट हो सकता है। दैट ऑल्सो मे बी ए पार्ट ऑफ रिस्क। ओके, द रिस्क केम फ्रॉम द स्टोरेज ऑफ गुड्स, दैट रिस्क मे केम फ्रॉम ड्यू टू एक्सीडेंट, द रिस्क मे केम फ्रॉम ड्यू टू थेफ्ट, अगर चोरी हो गया तभी भी एक रिस्क है बिजनेस के लिए। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड ऑल दिस टाइप ऑफ रिस्क वी नीड
इंश्योरेंस। अगर हमारे पास इंश्योरेंस है, जैसे हम लोग अपने लाइफ के लिए लाइफ इंश्योरेंस कर देते हैं, उसी तरह ही बिजनेसमैन बिजनेस का इंश्योरेंस करवाता है, ठीक है। रिस्क और इंश्योरेंस अगेंस्ट थेफ्ट, इंश्योरेंस अगेंस्ट फायर, इंश्योरेंस अगेंस्ट एक्सीडेंट, all these there are various types of insurance also there. So as per the requirement of the businessman has to decide or to choose the proper insurance facility, and the insurance facility covers all the risk which came from that particular source, ठीक है। अगर कुछ अभी हम लोगों ने इंश्योरेंस किए हैं रिलेटेड टू एक्सीडेंट, अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगा, जितना भी लॉस है वो लॉस का पेमेंट किसको देगा, बिजनेसमैन को पे करेगा। अभी मान लो हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, तो हम लोग इंडिया से श्रीलंका गुड्स बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे मतलब कहाँ पे गुड्स जाएगा, गुड्स सी में जाएगा, समुद्र के बीच में जाएगा, तो वहाँ पे रिस्क है या नहीं है। सपोज मान लो कोई एक साइक्लोन आ गया या फिर कहीं पे डिप्रेशन हो गया, तो वहाँ पे भी गुड्स मतलब लॉस होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। तो अगर मान लो ऐसा अगर बिजनेसमैन सोचेगा कि मेरा गुड्स लॉस हो सकता है, तो वो क्यों बिजनेस करेगा, वो कभी गुड्स सेंड ही नहीं करेगा, नहीं मेरा गुड्स मेरे पास ही रहने दो, मैं इंडिया में ही बेच दूंगा, क्यों बाहर को बेचूंगा। तो वहाँ पे क्या करता है, इंश्योरेंस कंपनी आके बोलता है भैया आप गुड्स सेंड करो, आपका गुड्स का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम लोग लेंगे, मतलब इंश्योरेंस कंपनी लेगा वो टोटल गुड्स का जो रिस्क है, ठीक है। So that comes under your insurance part. So this is all about your aids to trade. Similarly, all these points we had already discussed about the various functions of commerce. Like the first one, that is your hindrances of hindrances of person तो यहाँ पे जनरली बोला नहीं गया है, लेकिन वहाँ पे हम लोग बात किए थे hindrances of time. How the hindrances of time can be removed with the help of warehousing. The hindrance of time can be removed. How the hindrance of knowledge can be removed, that can be removed with the help of advertising. Warehousing point था, advertising point था, ठीक है। With the help of advertising we can remove the obstacles of knowledge. With the help of जो टाइम तो warehousing हो गया, insurance, the hindrances of risk, the obstacles come from risk that can be removed with the help of insurance. Banking, the hindrances came from exchange of goods and services can be removed with the help of banking facility, okay. Then the last one, transportation place, the hindrances of place can be removed with the help of transportation facility. So my dear all students, I hope all of you are having a clear idea about what is aids to trade, what are the services required to carry out the trade activities. So thank you and have a nice day.